Good morning to all my dear students of class 7th. Today I am here to explain you the chapter number 2 of the subject Social Science part Geography. So let's begin now. Open page number 10 of your book. Page number 10 of your book. Chapter number 2. First thing we have to do is to write today's date, that is 27/8/2020. Before starting with the explanation, I want to tell you that in this chapter I have underlined some difficult words which you all have to underline according to my explanation. The name of the chapter is The Earth's Interior and Its Materials. क्या नेम है चैप्टर का? Earth's Interior and Its Materials. अर्थ के अंदर क्या है और कौन से मटीरियल्स से वो बनी है. So our first paragraph is surface of the earth. Surface of the earth is divided into oceans and continents. ठीक है, जो अर्थ का सरफेस है उसको बांटा गया है ओशंस और कॉन्टिनेंट्स में. Oceans comprise 71% of the earth's total surface and continents account for less than 1/3 or 29%. हम सबको पता है कि पूरे अर्थ में 71% वाटर है जो कि महासागर है, ओशंस जिसे बोला जाता है, और सिर्फ 29% लैंड है जिसमें कॉन्टिनेंट्स है. कौन से कॉन्टिनेंट्स? एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप. ये होते हैं कॉन्टिनेंट्स. और ओशंस क्या है? इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन. ठीक है. The ocean's flows and Earth's surface are both undulating and irregular. This irregularity and shape of the surface of the Earth is called relief. In other words, the variations in altitude मतलब height, of landforms are generally referred to as relief. Relief क्या होता है? अर्थ कैसे बदलती है. ठीक है, एक पर्टिकुलर वे में नहीं है, अर्थ बदलती है. यानी कि आप कहीं चले जाएंगे तो आपको एरिया कहीं किसी और तरीके का मिलेगा, कहीं चले जाएंगे तो किसी और तरीके का मिलेगा. इन्हीं चेंजेस को हम कहते हैं रिलीफ. इन अदर वर्ड्स, द वेरिएशंस इन ऑल्टीट्यूड ऑफ लैंडफॉर्म्स आर जनरली रिफर्ड टू एज रिलीफ. Most of the high relief, for example mountains, is the work of internal processes operating in the Earth's interior. Low relief, like a plain, is the work of external processes. हाई रिलीफ मतलब माउंटेन एरिया, पहाड़ी इलाका, और लो रिलीफ मतलब प्लेन एरिया जहां हम रहते हैं. इट मे बी दस कंक्लूडेड दैट इंटरनल processes are engaged in raising the relief features. The external processes do the work of gradation or leveling of the irregular features of the Earth's surface. A systematic study would further reveal that depending on the origin of the landforms, there are three main categories. The first category includes the continents and the ocean basins. The second category consists of relief features such as mountains, plateaus and plains. These features are affected by the external processes like weathering and erosion. In the third category are the agents of denudation, namely running water, sea waves, wind and glaciers. अर्थ को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है. पहली कैटेगरी में हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस की, दूसरी कैटेगरी में माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स की, और तीसरी कैटेगरी में रनिंग वाटर, सी वेव्स, विंड और ग्लेशियर्स के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अर्थ के अंदर क्या है. ठीक है. द डिटेल स्टडी अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज जनरली डन बाय द जियोलॉजिस्ट. अर्थ की डिटेल स्टडी, अर्थ को डिटेल में कौन पढ़ते हैं? जियोलॉजिस्ट. जियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो जियोलॉजी पढ़ते हैं. जियोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, उनको पढ़ने वाले को बोला जाता है जियोलॉजिस्ट. जैसे साइंस पढ़ने वालों को बोला जाता है साइंटिस्ट. ठीक है. However, an elementary knowledge about the structure of the earth is necessary to understand geography. It will help us to understand the changes taking place on the surface of the earth. Today, we can go far into the space, but it is not possible to do the same in the case of the Earth's interior. We have landed on the moon's surface, but cannot reach to the center of the Earth. The temperature inside the Earth increases with increase in depth. It is estimated to be about 5000 degrees Celsius at the center of the Earth.
अर्थ का सेंटर यानी कि इक्वेटर, अर्थ के बीच में कौन सी लाइन होती है? इक्वेटर। इक्वेटर वो लाइन होती है जो अर्थ को दो इक्वल भाग में डिवाइड करती है। अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द equator is an imaginary line which divides the earth into two equal parts. It is not possible to undertake direct studies about the interior of the earth. Thus, most of our knowledge about the structure and the interior of the earth is based on the behavior of seismic or earthquake waves. From the study of these waves, we learn that the interior of the earth is not composed of the same material. हमने जो जियोलॉजी पढ़ने वाले हैं उनके स्टडी के अनुसार पता चला है कि अर्थ के अंदर जो भी मटेरियल अवेलेबल हैं वो सब सेम नहीं है। द डेंसिटी ऑफ द अर्थ मटेरियल इंक्रीजेस ग्रेजुअली फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर। अर्थ के मटेरियल की जो डेंसिटी है वो क्या होती है? वो बढ़ती जाती है जितना हम अंदर जाते जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिंग डेंसिटी एंड अदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of the earth's material, the earth is roughly divided into three concentric layers. अर्थ की लेयर्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है क्रस्ट, सेकेंड इज मैंटल, थर्ड इज कोर। क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। अर्थ इज डिवाइडेड into three concentric layers: crust, mantle and core. This arrangement can be compared to that of an onion that its shells one inside the other. हम अर्थ को कंपेयर कर सकते हैं प्याज से। जब हम प्याज छीलते हैं तो एक बाई एक लेयर जो है हम हटाते जाते हैं, उसी तरह अर्थ की भी लेयर्स हैं। ठीक है, अर्थ को किससे यहाँ पे कंपेयर किया गया है? प्याज से। जैसे प्याज में लेयर्स होती है वैसे अर्थ में लेयर होती है। फर्स्ट इज क्रस्ट। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्रस्ट के बारे में। The outermost and the thinnest layer of the earth is called crust. ठीक है, आप ये देखिए अर्थ के इंटीरियर ऑफ द अर्थ का ये डायग्राम दिया है। इस डायग्राम को आपको अपनी कॉपी में बनाना है। अब यहाँ से हम समझते हैं सबसे बाहर वाली जो लेयर है, ये देखिए ये अर्थ बना है। अर्थ के जो सबसे बाहर वाली लेयर है ये है क्रस्ट। दिस इज नोन एज क्रस्ट। ये सबसे पतली लेयर होती है, थिनेस्ट लेयर यानी कि सबसे पतली लेयर। इट कंसिस्ट ऑफ लाइटेस्ट मटीरियल्स। इसमें लाइटेस्ट मटीरियल्स होते हैं। इट्स डेंसिटी इज लोवेस्ट। जितना बाहर की लेयर उतनी डेंसिटी कम, जितना अंदर जाते जाएंगे डेंसिटी उतनी ज्यादा। गहराई, डेंसिटी मीन्स गहराई। ठीक है, द मटीरियल्स फॉर्मिंग क्रस्ट आर मेनली सिलिका एंड एल्यूमिनियम। जिससे क्रस्ट बनता है वो मटीरियल्स बेसिकली कौन कौन से हैं? सिलिका एंड एल्यूमिनियम। द क्रस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड सियाल। क्रस्ट को सियाल भी बोला जाता है। इट्स एवरेज थिकनेस वेरीज बिटवीन 8 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। इसकी थिकनेस जो है वो 8 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक होती है। इट इज थिकेस्ट इन माउंटेनियस एरियाज एंड थिनेस्ट इन ओशन बेड। It is broken into large continental blocks called plates which are constantly in motion. The lower part of the crust is सीमा। क्रस्ट के नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं सीमा। It is called so due to the presence of silica and magnesium. Silica and magnesium means सीमा। सिलिका का SI, मैग्नीशियम का Ma, so सीमा। It is mostly present under the continents. The density of the crust is less than 3 gram per cc. The oceanic crust is denser than the continental crust. सेकेंड लेयर अर्थ की जो है वो है मैंटल। क्या है? मैंटल, जो कि है सेकेंड लेयर। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं क्रस्ट सबसे बाहर वाली लेयर है, उसके जस्ट बाद जो रेड कलर से लेयर है ये है मैंटल। द लेयर लोकेटेड अंडर द क्रस्ट इज कॉल्ड मैंटल। क्रस्ट के नीचे वाली लेयर को, क्रस्ट के जस्ट नीचे वाली लेयर को हम कहते हैं मैंटल। इट इज अबाउट 2900 किलोमीटर थिक। इसकी थिकनेस कितनी है? 2900 किलोमीटर। और क्रस्ट की कितनी थी? 8 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर। दीज रॉक्स आर सो हॉट दैट इट इज ऑफन पार्शली मोल्टन। ये जो पत्थर हैं ये इतने गर्म होते हैं कि कुछ पत्थर गर्माहट से हल्के पिघले होते हैं। मोल्टन मतलब पिघले हुए। ऑन दिस लेयर द रिजिड लिथोस्फीयर प्लेट्स फ्लोट लाइक आइस इन अ पॉन्ड. The mantle is classified into two parts, upper mantle and lower mantle. Mantle को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, upper mantle and lower mantle. The upper mantle is in solid form and the lower mantle is in semi-molten condition.
ऊपर वाला जो मैंटल है वो सॉलिड फॉर्म में है और नीचे वाला मैंटल जो है वो हल्का सा पिघला हुआ है। द डेंसिटी ऑफ द मैंटल वेरीज बिटवीन 3.5 एंड 5.5 ग्राम per cc. The average temperature of the upper mantle is 870 degrees Celsius, while the lower mantle has an average temperature of 2200 degrees Celsius. Third layer of the earth is known as core. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दो कोर है, इनर कोर एंड आउटर कोर। ये जो स्किनी कलर है दिस इज इनर कोर सबसे अंदर, और जो बाहर येलोइश है दिस इज आउटर कोर जो मस्टर्ड कलर दिया है। The innermost layer forming the metallic center of the earth is called core. The core of the earth is a dense magnetic ball of minerals, iron and nickel. Iron and nickel are minerals. Hence, it is also called infi, iron and nickel. The density of the core is about 11 gram per cc. The core has two parts. Core के भी दो parts होते हैं, सबसे पहला आउटर कोर, दूसरा इनर कोर, जैसा कि हमने डायग्राम में आप लोगों को दिखाया। आउटर कोर इट इज सो हॉट दैट इवन मेटल्स ऑल्सो मेल्ट। आउटर कोर इतना गर्म है कि मेटल्स भी रख दें तो वो पिघल जाए। इनर कोर इट हैज मैक्सिमम प्रेशर, देयरफॉर इट कैन नॉट मेल्ट इवन थ्रू टेम्परेचर इज अराउंड 3700 डिग्री सेल्सियस। इनर कोर इतना सॉलिड है कि चाहे टेम्परेचर कितना भी बढ़ जाए ये पिघलेगा नहीं। मटीरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ में पाए जाने वाले मटीरियल्स क्या हैं? द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ द क्रस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड लिथोस्फियर। अर्थ का जो सबसे आउटर पार्ट है, जो भी हमने आपको दिखाया, जो सबसे पहली थिकेस्ट लेयर होती है उसी को क्रस्ट कहते हैं। इसको हम लिथोस्फियर भी बोलते हैं। द वर्ड लिथोस्फियर मीन्स अ स्फीयर ऑफ रॉक्स। लिथोस्फियर मतलब स्फीयर ऑफ रॉक्स। Rocks which form the crust of the earth are a mass of natural deposits. Rocks are generally thought of a solid mass like granite, sandstone or marbles. Rocks also include loose materials such as sand, silt or gravel. Rocks मतलब पत्थर, सबको पता है पत्थर, चाहे वो मार्बल के हों, चाहे वो मिट्टी के हों, चाहे वो सीमेंट के हों। Rocks are made up of one or more minerals. Rocks do not have a definite chemical composition. The common minerals found in the rocks are quartz and feldspar. Minerals are those substances which occur naturally in the rocks. Minerals वो substances होते हैं जो rocks में naturally होते हैं। Each mineral usually contains 2 or 3 simple substances called elements. Minerals have a definite chemical composition. Some minerals provide us metals and chemicals. कुछ minerals से हमें metals और chemicals मिलते हैं। The minerals are non-living solid substances. Minerals क्या होते हैं? Non-living solid substances. Minerals जैसे gold, silver, iron, nickel, aluminium, ये सब क्या होता है? Minerals, जो कि जमीन के अंदर से निकलते हैं खुदाई करने पर, माइनिंग करने पर। Minerals are thus chemical substances found in nature. A rock in which a particular mineral is found in large percentage is called the ore of that mineral. माइनिंग इज मोस्टली डन इन दोज एरियाज वेयर ओर्स अकर। ये मैंने आपको समझाया, माइनिंग करके हम मिनरल्स निकालते हैं, जमीन की खुदाई करते हैं तो मिनरल्स मिलते हैं। टाइप्स ऑफ रॉक्स, अब हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ रॉक्स अर्थ में अवेलेबल हैं। बेसिकली 3 टाइप्स। रॉक्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द मैनर ऑफ फॉर्मेशन। दीज कैन बी लिस्टेड एज इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। रॉक्स 3 टाइप्स के होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सबसे पहले पढ़ते हैं इग्नियस रॉक्स के बारे में। द हॉट लावा दैट फ्लोज आउट ड्यूरिंग वॉल्केनिक eruptions cools down, solidifies over a period of time and forms igneous rocks. वोल्केनोज होता है, ठीक है, वोल्केनो इरप्शन जब होता है, जब उसके अंदर से लावा निकलता है, यानी कि हॉट मोल्टन लिक्विड, पिघला हुआ गर्म लिक्विड निकलता है। लिक्विड निकलने के बाद जब ठंडा होता है, कुछ दिनों बाद वो जम जाता है, तो इनको कहा जाता है इग्नियस रॉक्स। ठीक है, इग्नियस रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। प्राइमरी रॉक्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक्स। प्राइमरी रॉक्स सरफेस ऑफ द अर्थ में जो बनते हैं उन्हें एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। दे हैव अ फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। बेसाल्ट इज एन एग्जाम्पल। The Deccan Trap region in the Deccan Plateau is made of basaltic rocks.
Magma यानी कि molten rock that gets trapped in veins deep inside the earth cools down over a long period of time and forms rocks. These primary rocks are called intrusive rocks. सेकेंड टाइप इज सेडिमेंट्री रॉक्स. इग्नियस रॉक्स तो वो होते हैं जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, मोल्टेन लावा निकलता है, वो जब ठंडा होके रॉक की शेप ले लेता है तो उसे हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं. अब समझते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है. Igneous rocks are exposed to natural agents like wind, water and glaciers. These agents break the rock on the Earth's surface into smaller fragments. The small fragments convert into tiny particles gradually. The particles of rocks called sediments are carried by these moving agents. Rivers, wind and glaciers carry these small particles underwater. These deposits generally occur in layers. Rocks formed in this way are known as sedimentary rocks. जब वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद जब लावा ठंडा होता है और उससे इग्नियस रॉक्स बनते हैं, बड़े बड़े पत्थर. अब मान लीजिए बहुत तेज हवा चल रही है या बाढ़ आ गई है या पानी का फ्लो है तो बड़े बड़े पत्थर जो है वो टूट जाते हैं. छोटे छोटे पत्थरों में स्मॉल स्टोन्स बन जाते हैं. तो जब बड़े पत्थर नेचुरल प्रोसेस से, कोई आके उनको तोड़ता नहीं है, नेचुरल प्रोसेस से तेज हवा से या पानी के बहाव से या टकरा के छोटे छोटे पत्थरों में बिखर जाता है, तो इन पत्थरों को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. These rocks always have layers or stratia and are stratified rocks. Sandstone, limestone and shale are example of such types of rocks. Coal and petrol are also formed in these types of rocks. With the passage of time, the trapped remains of vegetation or animals change into coal or petroleum. Since remains of trapped vegetation or animals are called fossils, coal and oil are also known as fossil fuels. Fossils provide us information about age of the rocks which were formed millions of years ago. Metamorphic rocks. सबसे तीसरा जो type of rock है that is metamorphic rocks. When igneous and sedimentary rocks are subjected to great heat and pressure, their original character and appearance completely change, giving them a new form. Such rocks are called metamorphic rocks. ये कह रहा है जब igneous और sedimentary rocks बहुत गर्माहट की वजह से पिघल जाते हैं या बदल जाते हैं और उसके बाद जो वो शेप लेते हैं तो वो बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स. Such rocks are called metamorphic rocks. Common examples include marble, quartzite, graphite, etc. Limestone changes to form marble, sandstone changes to form quartzite and coal changes to form graphite. रॉक साइकिल. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रॉक साइकिल बनी है, इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे. नाउ रॉक साइकिल होती क्या है? द रॉक्स फाउंड इन एनी एरिया चेंज देयर फिजिकल एंड केमिकल फॉर्म्स. द प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडरगो अ साइकिल ऑफ चेंज ड्यू टू चेंजिंग वेदर कंडीशंस एंड फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक विंड, rivers, glaciers, volcanic activity and the earth movements. The rocks are continuously being formed, destroyed and reformed. जैसा कि आप लोगों ने अभी समझा कि कैसे चलती है रॉक की साइकिल. वोल्केनिक इरप्शन हुआ, इग्नियस रॉक्स बना, इग्नियस रॉक्स टूटा तो क्या बना? सेडिमेंट्री. सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक्स के शेप चेंज हुए तो बना मेटामॉर्फिक. फिर से वोल्केनिक इरप्शन हो गया, फिर इग्नियस. तो इस तरह ये साइकिल जो है चलती रहती है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट रॉक साइकिल. नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल्स. मिनरल्स मैंने आपको बताया ये जमीन के अंदर मिलते हैं, माइनिंग करके, खुदाई करके एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना बाहर. Minerals, as we know, are substances which occur naturally in rocks. Its chief characteristics are as follows. Minerals के कुछ characteristics दिए हुए हैं. Each mineral has 2 or 3 elements. हर एक mineral में 2 या 3 element होता है. They have definite chemical composition. Minerals provide us metals and chemicals. Minerals से हमें metals और chemicals मिलता है. Minerals are non-living and solid substances. Minerals जो हैं वो non-living solid substances हैं. Minerals thus have chemical substances. Uses of rocks and minerals. Rocks और minerals के क्या uses हैं? The minerals in the soil provide nutrients that plants need. Hard and large blocks of rocks are used for construction work. बड़े बड़े पत्थर यूज होते हैं construction के लिए. Rocks with adequate mineral content ores are used in industry. Minerals, precious metals and gemstones are also used in making jewelry. Minerals यानी metals को हम use करते हैं
ज्वेलरी बनाने के लिए, ये सबको पता है, गोल्ड और सिल्वर वगैरह से ज्वेलरी बनती है। अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर बी गिवन ऑन पेज नंबर 14। चूज द करेक्ट आंसर, वी हैव टू टेक द करेक्ट आंसर। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज नाइफ। टेक ऑन नाइफ। We can get information about the age of the rock through fossils. Rocks formed in the crust are called extrusive. Okay, first answer was knife, second is fossils, third is extrusive. Exercise number C, name the following rocks. Number 1, rocks formed by the accumulation of sediments, sedimentary rocks. Second, rocks formed by the cooling of lava, igneous rocks. Third, rocks that have changed from their original form under extreme temperature and pressure, metamorphic rocks. Number D, filling the blanks with the appropriate word from the list. यहाँ पे कुछ words दिए हैं, इनको यूज करके हमें blanks को भरना है। देखते हैं। About dash of the surface of the earth is occupied by land, 29%. Second, सिलिका एंड एल्यूमिनियम आर द मेन मटेरियल्स फॉर्मिंग द क्रस्ट। हमने ये पढ़ा था, क्रस्ट दो मेन मटेरियल से बना रहता है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, जिसका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ था सीमा। सॉरी, दैट वाज सिलिका एंड मैग्नीशियम, दिस इज सियाल। ठीक है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। थर्ड, डैश आर अ मास ऑफ नेचुरल डिपॉजिट्स, रॉक्स। फोर्थ, primary rocks formed on the surface of the earth are called extrusive rocks. Fifth, the minerals in the soil provide nutrients that plants need. ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट हो गई हैं। क्वेश्चन आंसर एज यूजुअल आप लोगों को होमवर्क फोल्डर में मिलेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। चैप्टर नंबर 2 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 7 इज कंप्लीटेड, मीन्स यूनिट टेस्ट 2 कोर्स ज्योग्राफी का कंप्लीट। एक ही चैप्टर आपके कोर्स में है। थैंक यू वेरी मच।